So whatever is the uppermost that is there, it has to be dealt with first. When that is quietened, its power is diffused, and you are able to think more straight, more clear, with less of disturbance in the mind. Mind में क्या होता है, एक thought आता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, and you're not able to focus on a single line of thought and think it through at will. You have to bring your thought back, etc. Because kabhi this emotion takes over, that emotion takes over, something that's happening in front of you takes the forefront of you. और कोई भी एक चीज के ऊपर ठीक से ध्यान देके विचार करके उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, खास करके जब ऐसी स्थिति हो जाती है. And when that happens in the mind so much, it starts showing in the body. Like in your case, you were saying that it was showing as palpitation, tweaking in the arms. Now, उसका कोई organic reason तो था नहीं. Right? You had not put in some chemicals inside the heart that it was jumping so much. नहीं ना. We hadn't done anything. It had got to do with what was going on in our mind. Yes. And in the mind, it all first started, some event happened. And you attached fear and anxiety to it. Right? Now, fear and anxiety was not in that event. It was not in that news that came to you. When the news fall on your ears and it went to the head, in between these two things, you attached to it. So your brain did not receive the news. Your intelligence only received fear and anxiety. And the fear and anxiety, it has happened so often with you, because you said that for so many years, this has been going on in your life. And it has happened so often with you that now that connection is already established. कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वो दिखेगा, इतना लाउड हो जाता है कि अब जैसे पानी भरा हुआ ऑलरेडी बाल्टी में, एक ही मग और डाला कि वो ऊपर से ओवरफ्लो होने लगता है. तो वो ओवरफ्लो होके बॉडी के अंदर आ रहा है. यानी माइंड में इतना ज्यादा हमने उसको भर लिया है, तो थोड़ा सा भी फियर एक्स्ट्रा हुआ, थोड़ा सा भी एंजाइटी हुआ, तो वो एज अ सोमैटिक में आ जाता है ना. तो अभी यही चीज बार बार होने लगेगी, तो देयर कुड बी सम अदर फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस दैट विल हैपन इन द बॉडी, एंड यू विल नॉट इवन नो व्हेन इट हैज टर्न्ड इनटू सम डिजीज. फिर हम उस डिजीज का इलाज करते रहेंगे, तो वो एक्सटर्नली उपाय होगा, और उस डिजीज की वजह से अंदर का वो फियर एंजाइटी तो वहीं का वहीं रहेगा. और इस बॉडी को, पार्ट को, इस सिस्टम को जो डिजीज हुआ है, उसको तुम दवाइयों से ठीक रखते रहोगे, वो कहाँ निकलेगा? वो किसी और पार्ट में जाएगा. Some other neglected part will take it up. So, unless and until this root cause is dealt with, and you take the onus of having to attach this fear and anxiety to it yourself, then you can remove it. So, EFT, this technique, I actually don't use it as EFT anymore, therefore I don't restrict myself to only emotions, which you saw. I included your physical symptoms and everything else also in it. So I use it as a perception changing technique. I call it Vritti Changing Technique. Vritti is a Sanskrit word for perception. So it is to change your perception of this event as an event of anxiety, as an event of fear, as an event to let yourself be affected. This thinking, this perception, this feeling has to change. This experience has to undergo a change. Means, अब बाहर कुछ हो रहा है, कोई बीमार तो पड़ेगा ही ना कभी तो, right? और तुमको नई न्यूज आएगी तो भी तुम्हें बुरा लगेगा कि तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुमने मेरे को बताया नहीं, राइट? लोग कहेंगे नहीं, आपको इतना एंजाइटी हो जाता है, आप इतने परेशान हो जाते हैं, इसलिए नहीं बताया, तो वो भी आपको बुरा लगेगा, करेक्ट? तो व्हाट डू यू वांट टू डू? You have to be able to stand strong, wherein
when this news comes, you are more of a help. Rather than saying, I need more help from you, what are you telling me about your illness? ऐसे हो गया ना ये तो तो उसको बताएंगे तो उसको और संभालना पड़ेगा, वो खुद एंजाइटी से बीमार हो जाएगी. तो लोग बताना नहीं चाहेंगे फिर आपको. So we have to change this. What we have to change is the way we receive the information, right? Once you can change that way, then you can deal with the situation better. And all the rest of it, in the meantime, that you have already gathered, तो हमें एक काम वो करना है. और उसके साथ साथ हमारे अंदर जो हमने ये आदत डाल रखी है कि फियर एंजाइटी आएंगे तो पैल्पिटेशन बढ़ेगा, बिकॉज यू सेड इट्स एवरी टाइम इंक्रीजिंग योर पैल्पिटेशन, करेक्ट? तो ये कनेक्शन तुमने जो एस्टेब्लिश कर रखा है उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस न्यूज से फियर एंजाइटी नहीं आएगा, क्योंकि उसका तुमने परसेप्शन चेंज कर लिया है. किसी और न्यूज से आएगा फियर और एंजाइटी. यदि तुम्हारे सिस्टम को फियर में और एंजाइटी में रहने की आदत हो गई है तो किसी और चीज के साथ में उसको जोड़ लेगा, और ईच टाइम वो आएगा और तुम्हारा पैल्पिटेशन बढ़ेगा. फिर तुम बोलोगे पहले तो इससे ही होता था, अभी इससे भी होने लगा, राइट? सो एक ये कनेक्शन भी उसको लूज करना है पहले तो, कि जैसे कुछ फियर की बात हो, कोई एंजाइटी की बात हो, जिसको तुम फियर और एंजाइटी अटैच करो, उसके साथ में पैल्पिटेशन होने लगे, करेक्ट? और ये आर्म्स का ट्विकिंग मेरे को लगता है अभी रिसेंट होने लगा है, पहले नहीं होता था, है ना? तो अभी देखो इतने से काफी नहीं लग रहा है. तुम्हारे बॉडी को लगता है कि नहीं और भी कुछ साथ में होना चाहिए. मे बी योर मसल्स ऑफ द आर्म आर ओवरवर्क्ड और दे आर लिटिल एग्जॉस्टेड, अ लिटिल वीकर. सो वो बोले हाँ, आई कैन कम अलोंग विथ यू. तो आर्म्स ने भी उनके साथ देना शुरू कर दिया. किसी और की बॉडी में यदि स्टमक वीक होता तो क्या, ओके आई विल कम अलोंग, वो स्टमक पेन होने लगता. किसी का हेड के अंदर होता तो किसी को हेडेक होने लगता. सो इट वर्क्स, एक्सप्रेसेस इटसेल्फ डिफरेंटली इन डिफरेंट बॉडीज. आपकी बॉडी में इस प्रकार से उसने एक्सप्रेस करना शुरू किया. तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो. सो ऑल दीज डिफरेंट एरियाज हैव टू बी वर्कड एट. इन एडिशन वी हैव टू, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गेस्ट थिंग, योर फियर एंड एंजाइटी और किस किस चीज के साथ में अटैच होने लगे हैं. You also said कि हाँ वहां से शुरू हुआ था, right? Very good that you know where it started. So उसके ऊपर से हम जब काम शुरू कर लेंगे तो आप देखोगे और कहाँ से ये फियर और ये एंजाइटी और ये पैल्पिटेशन ऐड होता रहा है. कि इस न्यूज में इसलिए हुआ, उस न्यूज में इसलिए हुआ, लेकिन हुआ. यानी कि कितना अच्छा बड़ा सारा अंबार आप कितने सालों से हो रहा है उतना साल का आपने जमा कर लिया, है ना? तो एक एक को निकालना पड़ेगा. तो लेयर बाय लेयर, और हम एक साथ में भी नहीं निकालेंगे, बिकॉज योर होल बॉडी सिस्टम, योर इवन द फिजियोलॉजी ऑफ योर सिस्टम हैज गॉट यूज्ड टू सर्टेन थिंग. तो उसको धीरे धीरे करके जब निकालेंगे, या वो कुछ हिस्सा, कभी कभी दिवाली की सफाई करते वक्त कोई एक पुराना कुछ जमा हुआ कहीं पर है, ऐसा गार्बेज कचरा वगैरह, तो उसको निकालने जाओ तो क्या होता है, एक साथ में निकालोगे तो कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है ना. तो अभी अपने को तो साथ में रेगुलर लाइफ तो चालू रखना है ना, तो बंद तो नहीं कर सकते ना. तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे, so that your body gets time, your mind gets time to adjust to whatever smaller changes that are happening. उसको शॉक नहीं लगना चाहिए, नहीं तो उस शॉक की वजह से और एक एडिशनल नया काम शुरू हो जाएगा. तो एक को निकालोगे और दूसरा कुछ शुरू हो जाएगा, वो नहीं करना है, राइट? इसको निकालते निकालते दूसरा भी कुछ इधर उधर का उसके अंदर अटका हुआ साथ में आएगा, तो उसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है? और कभी कभी क्या होगा कि दिस थिंग विल बिकम अ लिटिल सेकेंडरी, क्योंकि उस दिन कुछ एक और इवेंट हुआ होगा, उसकी वजह से कुछ और इमोशंस अपर मोस्ट हो गया है,
कुछ अर्जेंट इमीडिएट हो जाता है ना, तो इसके ऊपर काम करने से पहले हमको पहले उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे दब जाएगा, उसके ऊपर आके कुछ और दूसरा पड़ गया. तो we will remove that first and then continue to work with this. So you got how it works and how we will go about it. Yes. So I'm so happy for today in just such a small time. कितनी देर हमने 10-15 मिनट किया होगा, है ना? टैपिंग तो उतनी देर ही किया, राइट? और उसके अंदर आपका ये शांत हो गया अभी के लिए. That doesn't mean it has gone away. It means you are building up a new memory today. अभी तक तुम्हारा मेमोरी यही है कि ये न्यूज, then this happened, then this happened, then this happens. Today you build up, you're beginning a new memory. You're writing a new lesson. Yes, it may happen. Is